जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों में आगे बढ़ने से खबर आई नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में आलमी क्राफ्ट काउंसिल की 60वीं युग जुबली तकरीब में की शिरकत। कहा उनका ख्वाब मेड इन जम्मू कश्मीर तख्लीकी मसनूआत को दुनिया भर के घरानों का लाजमी हिस्सा बनाना। मुल्क भर के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर भर में भी मुनक़िद हुई यौम आइन की तक़रीबात। खिदमात को मुस्तकिल करने, तनख्वाहों में इजाफा करने और कम अज कम उजरत एक्ट को नाफिज करने का मुतालबा करते हुए आंगनवाड़ी वर्करान का श्रीनगर में एहतजाज। और शिबानी शाही ने यूपी सुंबल तशद्दुद और 3 मासूम नौजवानों के कत्ल की मुज़म्मत। नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबरान पार्लियामान से अपनी आवाज बुलंद करने की अपील। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में आलमी क्राफ्ट काउंसिल की 60वीं जुबली तकरीब में शिरकत की है। इस तकरीब का मकसद दस्तकारी और हैंडलूम की रवायत को मनाना था, जिसमें दुनिया भर से मुमताज दस्तकारों, डिजाइनर्स, तख्लीकी रहनुमाओं और दीगर स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया गया। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि उनका ख्वाब मेड इन जम्मू कश्मीर तख्लीकी मसनूआत को दुनिया भर के घरानों का मशहूर और लाजमी हिस्सा बनाना है। उन्होंने कहा है कि हमारा मकसद आलमी ताउन पर भी तवज्जो मरकूज करना और हिंदुस्तान के उन अनमोल फनी और सकाफती विरसे के लिए लोगों के राब्ते को बेहतर बनाना है। Good morning. I would like to congratulate today's awardees who have excelled in their respective areas of crafts. Launch of Seal of Authenticity for crafts will enable us to maintain beauty and ingenuity of our creative products. Many of our esteemed guests may not be aware, though it was told by our Chief Secretary, that in 2021, Srinagar city was also designated as a creative city as a part of the UNESCO Creative City Network for crafts and folk arts. Today, I am proud to say, while we have managed to revive the unique cultural and artistic heritage of Srinagar, we have also developed Srinagar as a smart city. Over the last 50 months, with robust infrastructure, sustainable environment, smart solutions for services, healthcare, education, mobility, and urban spaces to enhance quality of life. So personally, it is a double delight for me, as in the last 50 months, we have worked for preservation of tangible and intangible cultural heritage of Jammu and Kashmir, revival of handicraft handloom traditions, and successfully built a modern city full of hopes and dreams. I would like to pay homage to Indian craft pioneer and one of the founders of WCC, Srimati Kamala Devi Chattopadhyay. She was truly a visionary, a social reformer, a creative leader who played a crucial role in promotion of handicrafts and cooperative grassroots movement for social and economic upliftment of women and craftsmen. Her incisive approach to the world of design, art and crafts continue to light the lamp of creativity, and it is empowering millions of artisans over the world. I also welcome the distinguished guests from across the globe who have graced the 60th anniversary celebration of World Craft Council with their presence
I wish to appreciate the efforts of the Ministry of Textile, Ministry of External Affairs, Department of Industries and Commerce, Government of Jammu and Kashmir, Vikramjit and his team members, and the friends at WCC for organizing this great event. Friends, the anniversary of any premier institution is also an occasion to objectively consider the lessons of the past and to strategize to meet the challenges of the future. जिला इंतजामिया बारामूला ने आज योम आइन को जिला बारामूला के डीसी ऑफिस और दीगर सरकारी दफातर में बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरबा ने आइन की तमहीद पढ़ी, जिसमें तमाम ऑफिसरान और अहलकारों ने शिरकत की और आइन में दर्ज असूलों और इकदार को बरकरार रखने के मुश्तरका अज़म पर जोर दिया है। डीसी मौसूफ ने नज़्म व नस्क और अवामी खिदमात में आइनी नजरियात पर अमल पैरा होने की अहमियत को उजागर किया। जामा तरक्की और कौम की तामीर को फरोग देने में इंसाफ, मसावत, आज़ादी और भाईचारे की अहमियत को उजागर किया गया। याद रहे कि योम आइन हर साल 26 नवंबर को 1949 में आइन को अपनाने के एजाज में मनाया जाता है। Social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all. This 26th day of November, 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. जिला कांग्रेस कमेटी बारामूला के ज़ेरे एहतमाम डाक बंगला बारामूला में 75वां योम आइन मनाया गया है। इस तकरीब में कांग्रेस के बड़ी तादाद में रहनुमाओं ने शिरकत की है। रहनुमाओं ने आइन की अहमियत पर जोर दिया और इसकी इकदार और असूलों को बरकरार रखने का अहद किया है। सरकार अगर सोम लीडर बीजेपी साइड तमाम लीडरशिप सरकार बीजेपी हालात बने तो हालात कांग्रेस पार्टी सिर्फ राहुल गांधी तैयार कर तुम शुक्रिया के आईन के मुताबिक और बच्चे या जितने भी आजकल नेट के माध्यम से सबको कि ये जो देखिए यहाँ पर हमारे मीर इकबाल साहब जो है कांग्रेस के लीडर फयाज मीर साहब, उन्होंने ये प्रोग्राम रखा था बारामूला यहाँ पर। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे पे हमने यही बात यहाँ पर कही कि हम सब पे ये आज के दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी आयद होती है कि हम रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करे, फेडरलिज्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी। ये सुप्रीम कोर्ट ने केशवनंदा भारती जजमेंट में कहा कि ये रूह है, बेसिक स्ट्रक्चर है। फेडरलिज्म जो है ये रूह है किसका? हिंदुस्तान के आईन का। लेकिन हमने देखा किस तरीके से आपके सामने हम उसके सब शिकार है। जम्मू कश्मीर में आपने देखा फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से ब्रेजनली उसका उल्लंघन, वायलेट किया गया। 5 अगस्त को एक ऐतिहासिक स्टेट को इन्होंने यूटी बनाया। 5 अगस्त को इन्होंने एक ऐतिहासिक स्टेट को उसका बंटवारा किया। हमारा लद्दाख हमसे छीना। हम समझते हैं जिस तरीके से देश में डिवाइसिव पॉलिटिक्स, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। अभी आपने देखा कितना झूठ महाराष्ट्र के इलेक्शंस में यह कहा गया कि वहां पर जम्मू कश्मीर की जो ये कांग्रेस पार्टी है या बाकी इनके सहयोगी दल ये चाहते हैं अंबेडकर का कानून लागू ना हो। आज उनके लिए एक सियासी तमाचा है कि हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल हो, लेकिन उनका झूठ, उनका बहुत से लोगों का यह है कि हिटलर की तरह झूठ को रिपीट करो ये सच लगे।
हम ये आपको कहना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के अवाम, मैंने अंदर भी कहा अभी अपने भाइयों से बात करते हुए कि अकल से काम लीजिए। हम इस वक्त कांग्रेस पार्टी जो है उनका जो ऑफिशियल स्टैंड है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इंसाफ हो, इनका स्टेट बहाल हो, मोदी वाला स्टेट नहीं। हम चाहते हैं कि लद्दाख, उसमें बशमूल लद्दाख ऐतिहासिक स्टेट बहाल हो। हम चाहते हैं हमारी ज़मीन जम्मू कश्मीर के अवाम की, हम चाहते हैं हमारी नौकरियां जम्मू कश्मीर के अवाम, उसके लिए जम्मू कश्मीर के अवाम का हक। हम ये नेशनल रिसोर्सेज, पानी हो, बाजरी हो, रेत हो, ये जम्मू कश्मीर के अवाम के। अगर कांग्रेस पार्टी ये बात कहती है, मुझे लगता है पूरे मुल्क को, जम्मू कश्मीर के अवाम को इस मौक़िफ़ का साथ देना चाहिए। छना कशिर पटी वना देती गई बजाय वल दे। अगर इस ये हासिल करो, ये पार्टी ये वनान क्या पार्टी मन दम, ये मोदीस बीजेपीएस सियासी, मोदी जी बीजेपीएस खिलाफ सियासी तो लड़ित अस हेकन गलती आसन गमस, मगर वक्त जरूरत से ये तुम वो मुल्कस मज क्या गसान क्या गो, तेल सारवन पे रिस्पांसिबिलिटी बनान कि अस पज अत बीजेपीएस खिलाफ युस ते आवाज युस खुसूसन कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी यमो तथ खिलाफ कमर बस्ता गमुच। मोदी जी हंदिस सपना युस ओस सियासी ख्वाब सह करनोक युस 400 पार तथ सह कोर चकना तमिस सियासी तौर कोर चकना चूर सियासी तौर। इंशाल्लाह अस सारियन पजन कांग्रेस पार्टी अत करे मजबूत योताम JKPCC करा साहब मीर साहब बेहतरीन लीडरशिप। वहीं कांग्रेस ने आज श्रीनगर में 75वां यौम आइन मनाया है। तकरीबात के मौके पर कांग्रेस की सीनियर लीडर शमीमा मीर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 10 बरसों के बाद वजूद में आई मकामी हुकूमत से यहाँ 2 बड़े तारीखी इकदाम उठाए गए हैं, जिसमें रियासती हैसियत की बहाली के लिए करारदाद और तदरीसी सेशन को बदलना शामिल है। उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता 10 सालों में बीजेपी ने आइन की धज्जियां उड़ाई हैं। रहनुमा सुन वन राहुल जी सुन कि हर कह कांग्रेस वर्कर चाहे सो हिंदुस्तान किस कुन त हिस्सस मन सह मोन सारी खुद बोड़ बार गोल्डन एसेट क्या किरदार तो वस दस में आज ये जमा गमित अमुक पस मंजर क्या यह जानने कोशिश करें। आज आज हिंदुस्तान किस तमिस रहनुमा कानून डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हिंदुस्तान किस आइन आर्किटेक्ट मान यानी वन जादो तो 133 जादो पदिल आज वातान कि 1937 दिसंबर किस रेतस मज ये सात बरतानिया साम्राज्य की बरतानियन तबाह बर्बाद कर तम सात गई जरूरत 1937 दिसंबरस मज आईनी असेंबली बनान यमुक सरबराह इंटरिम सरबराह आव मुकद्दस फ्रीडम फाइटर तम पत आव 27 मज। देखिए, मैं कांग्रेस की सीनियर लीडर हूँ। हमने जो 1 महीने में देख लिया, बहुत 2 बड़े काम हो गए। जैसे पहले स्टेटहुड के लिए रेजोल्यूशन और दूसरा जो एकेडमिक सेशन जो मार्च में होता था, 1 साल ही हुआ पिछले साल, लेकिन इस साल वापस नवंबर में है, जिससे हमें बहुत बड़ी रिलीफ मिली है। सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन ये स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बहुत राहत मिली। ये 2 चीज़ें जो है 1 ही महीने में बड़ी 2 अचीवमेंट्स है। तो आपको लगता है कि इसके बाद भी उमर सरकार जो है लोगों के लिए काम करेगी? हाँ जी, और क्या, उन्होंने तो मतलब कोलेशन में भी बाकी भी हमने बहुत सारे वादे, इंशाल्लाह सारे वादे तो पूरे होंगे। लेकिन अगर आप इस नजरिए से देखेंगे कि 1 ही महीने में 2 हो गए, तो नेचुरली उम्मीद है आगे भी सारा कुछ हो जाएगा जो उन्होंने वादे किए। कॉन्स्टिट्यूशन डे आज मनाया जा रहा है, कैसे इस दिन को आप मनाएंगे? ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, तो इसलिए हम ये सेलिब्रेट करने कांग्रेस हेडक्वार्टर आए हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। देखिए, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन डे है, ये तो एक मैंने पहले भी बताया बहुत बड़ा दिन है, लेकिन जो लास्ट 10 ईयर से इसका हाल हो गया, जैसे इसको चीटी दे, मैं वही कहूंगी, चीते डे उठाए, इनका तार तार कर दिया। लेकिन अब राहुल जी हमारे जो लीडर है, तो वो इसको अपना दिन, मतलब जो इसका अपना मकसद है, मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन डे का, वो उसको रखेंगे।
वो तो है, देखिए हार जीत तो पहले तो हमारी कोशिश है, फिर ऊपर भी कोई बैठा है जो देखने वाला है। लेकिन अब ये है कि अलायंस है। देखिए पहले आप देख सकते हैं कि पहले बीजेपी के हक में कितने सीटें थे, अब कितने हैं, तो नेचुरली हम भी आगे आगे बढ़। आंगनबाड़ी वर्करान ने आज श्रीनगर में एक एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए एक रैली निकाली और अपने मुतालबात को पूरा करने के लिए नारेबाजी की है। उन्होंने हुकूमत से मांग की है कि उनकी खिदमात को मुस्तकिल किया जाए, उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और कम अज कम उजरत एक्ट को लागू किया जाए। डिपार्टमेंट को दे दी। ये आप देखिए तमाम तर चेहरे तक हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा। आज तक हमारे लिए हमने बस आशा वर्कर ब्लॉक हजरत बल पे आज प्रोटेस्ट कर मूजूब अम मूजूब आमुत कि सैलरी क्या 2006 पे करान ये कहीं ती शिकायत कुछ डिपार्टमेंट से, मगर वन कि गोस क्या बराबरी कि रोपिस 5,000 6 सास तथ क्या बन तथ पे क्या आयाल कि मतलब कह डिपार्टमेंट सह वन कि आशा वर्कर को ढूंढो। उसी को सब पता है क्योंकि कम्युनिटी की उसको बिल्कुल खबर है किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है। इसलिए हम आज प्रोटेस्ट के लिए आए हैं कि हमें बहुत सी उम्मीद है कि 10 साल के बाद आज जो हुकूमत आई है वो हमारे लिए कुछ तो कर सकेगी, लेकिन नहीं। लेकिन हम ये ऑनरेबल मिनिस्टर है, ये मतलब सकीना यतू जी है, हमें बहुत सी उम्मीदें उसके पास वाबस्ता है कि वो हमारे लिए कुछ तो करेगी इंशाल्लाह। मैं हूँ हलीमा, मैं जोन बटमालू से हूँ। मेरी पोस्टिंग HMT ज़ैनापुर में है, हेल्थ डिपार्टमेंट से। मैं एक आशा वर्कर हूँ। हमारी डिमांड्स ये है कि हमें रेगुलर किया जाए और हमारी जो इंसेंटिव में बढ़ोतरी की थी 1,000 की पिछले साल, पिछले अप्रैल से, वो भी नहीं दिए गए। हमारी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ से ये गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द वो 1,000 रुपये हमें इन महीनों का दिया जाए और जो भी हमारे इंसेंटिव है बाकी वो भी अदा किए जाए। सैलरी आपको बराबर मिलती है महीने के हिसाब से? सैलरी हमें नहीं मिलती, हमें टुकड़ों में मिलते हैं। हम यही अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि ये टुकड़ों में नहीं चाहिए, हमें एक अच्छी तनख्वाह चाहिए। जो हम काम करते हैं हमें वेजेस दो रेगुलर कर। और क्या तरह से अभी आपकी एक जो यहाँ पर आपके साथ में थी वो कह रही थी कि मुलाजिमों को प्राइवेट किया जा रहा है? हाँ किया जा रहा है। कभी ये भी बोला था ये स्कीम हम बंद कर लेंगे, लेकिन हम 17 साल से काम कर रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे आप इस वक्त? आप ही बताओ। घर भी होता है, घर में बच्चे भी अब बड़े हो गए, वो भी अब नहीं छोड़ते कुछ कहे बैर। वो भी कहते हैं क्या है आपने जिंदगी जाया की, क्या मिलेगा, मिला क्या? अब क्या, ये तो गवर्नमेंट को है ना, इस पर गौर खोज करना चाहिए कि हमने इतना। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह शिबान एशाई ने यूपी सुंबल में हौलनाक तशद्दुद और 3 मासूम नौजवानों के कत्ल की मजम्मत की है और इसे इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि इबादत गाहों के एक्ट के बावजूद वाज़ा तौर पर इस बात का इशारा है कि मजहबी मकामात की नौयत को तब्दील नहीं किया जा सकता। उन्होंने कश्मीर के मेंबरान पार्लियामेंट को खामोश तमाशाही न बनने और पार्लियामेंट में आवाज उठाने की तलकीन की है। उन्होंने पार्लियामेंट में मुसलमानों की कम होती हुई नुमाइंदगी की भी निशानदेही की है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला क़ियादत वाली हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में रहने वाले मुसलमानों पर भी बीजेपी की जारहियत की गैरवाज़िया तौर पर मुखालिफत करे। अब सब लोग जानते हैं कल के दिन संभल में क्या हुआ है, जामिया मस्जिद संभल में क्या हुआ है। उसके ज़िमन में जो हमारे एहसासात हैं, हमारे जज्बात हैं, हम सारी कौम के सामने रखते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या सही में आज हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है वो इतनी कमजोर हो गई है कि मुसलसल हमारी मसाजिद पे, हमारी दरगाहों पे, हमारी दरसगाहों पे कभी बुलडोजर भेजा जाता है, कभी कोई सर्वे कराया जाता है और हर तरह से जो मुसलमानों को सताने की कोशिश की जा रही है। इस सब पे हमें नजरसानी करने की जरूरत है। पहले एज अ कम्युनिटी ये सोचने की जरूरत है कि अगर 25 करोड़ मुसलमानों की यह हालत आज भी हो रही है, आजादी के 75 ईयर्स के बाद 70 साल से जायद हो गए और यह हालत है सबसे बड़ी अकलियत की, तो हमें भी नजरसानी करने की जरूरत है कि हम इतने कमजोर क्यों हुए। पहली बात, ये संभल में वायलेंस हुई है, पहली सर्वे जो कोर्ट ने ऑर्डर की, ये पिटीशन फाइल की गई है
कि आज से 500 साल पहले 1526 में वहां कोई मंदिर था जिसको डिमोलिश किया गया है। पहली बात तो मैं हिंदुस्तान के कोर्ट से ये पूछना चाहता हूं, जो हमारे होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, उनके राज में ये हो रहा है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं 500 साल पहले आपको कैसे मालूम है कि वहां कोई मंदिर थी? और ये सारे खेल कितनी देर तक चलते रहेंगे? यही बाबरी मस्जिद के किस्से में भी हुआ, यही आज भी हो रहा है कि भाई 500 साल पहले किस विजडम में उस जज ने सर्वे ऑर्डर किया, और सर्वे ऑर्डर करते हुए कुछ घंटों के बाद ही सर्वे टीम को वहां भेज दिया जाता है। इतना क्विक जस्टिस तो हमने किसी केस में नहीं देखा है आज तक, कि पिटीशन डाली नहीं और आपका वर्डिक्ट आ गया और कुछ घंटों में आपने वहां पे सर्वे टीम को भेजा। पहली बार संभल की जितनी भी अथॉरिटीज है, मस्जिद कमिटीज है, उन्होंने कोऑपरेट किया। दूसरी बात, आपने दोबारा सर्वे टीम वहां भेजी, किसके इजाजत से आपने भेजी? कोर्ट ऑर्डर आपके पास नहीं था और आप सर्वे करने लगे, जिसकी वजह से वहां हालात खराब हुए, स्टोन पेल्टिंग हुई और 4 से ज्यादा लोग जो है वो जान बाक हो गए। इसका जिम्मेदार कौन है? यह बात मैं यहां के लीडर से भी पूछना चाहता हूं। क्यों मैं पूछना चाहता हूं उसमें बाद में आऊंगा। फर्स्ट लेट अस डिस्कस द मेरिट्स ऑफ द केस। डीवाई चंद्रचूड़, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट दिया, उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई मैंने भगवान से पूछा, आई आस्क फॉर डिवाइन इंटरवेंशन, बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट देने से पहले। हिंदुस्तान का जो मुल्क है ये आईन के हिसाब से चलेगा, लॉ के हिसाब से चलेगा कि डिवाइन इंटरवेंशन के। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर लंगेट एजाज अहमद पंजवारी ने जानकारी दी है कि उनकी टीम जंगलात में आतशबाजी के किसी भी गैर मुतवक्का वाक़े से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया है कि माजी में लंगेट फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर सिर्फ 2 या 3 आतशबाजी के वाक़ात पेश आए हैं जिन पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया। डीएफओ लंगेट ने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर मज़ीद जोर दिया। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया है कि अगर कोई भी दरख्तों की गैर कानूनी कटाई का मुशाहिदा करता है तो वो हुकाम से रब्ता कर सकता है और उनकी शिनाख्त को सीगा राज में रखा जाएगा। जहाँ तक फायर, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें फायर इंसिडेंट्स इस मौसम में बहुत कम हुए। हाँ, प्रेसिपिटेशन कम हुई तो हमारे जो कंट्रोल रूम से वो राउंड द क्लॉक हमने ऑन प्रोएक्टिव बेसिस पे तैयार करके रखे थे। और मतलब एक चीज है कि मतलब जब भी कोई वो रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम कंट्रोल रूम्स को मिला और राइट ऑन द स्पॉट हम वो पहुंचते थे। 1-2 इंसिडेंट्स हुए लेकिन वो हमने कंट्रोल किए और बिफोर मतलब वो कोई ज्यादा नुकसान कर। हाँ, लोगों को हमने मतलब दिया हुआ है, वी आर इन टच विद ऑल द स्टेक होल्डर्स, जो भी यहाँ हंदवारा में या लंगेट में या रफियाबाद में, तो जैसे भी कहीं भी कुछ इंसिडेंट ऐसा होता था तो हमें फुल इंफॉर्मेशन मिलती थी और हम टाइमली उनके एक्शंस करते थे। जो पिछली दफा के अगर वो रिकॉर्ड्स देखा जाए या वो ग्राफ देखा जाए तो जहाँ तक इलीगल डैमेज केसेस है वो बहुत कम मतलब हुए हैं। क्वांटम ऑफ टिम्बर भी जो भी सीज हुई है वो कम है। और इक्का दुक्का वाकयात हुए हैं जहां भी ये चीजें हुई है तो हमने बिल्कुल उसमें टाइमली एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टर्स जो भी उसमें इन्वॉल्व थे उनको लिया हुआ। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी होगी एंड वी आर हियर कि हम थोड़ा पीएसए में एक्सरसाइज कर रहे हैं, शायद हम पीएसए भी लगा रहे हैं लोगों जो इसमें मुलविस है इस काम में है। तो वो एक्शन जो भी हमारे पास लीगल रिकोर्स है वो हम ले लेंगे ये बचाने के कि हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बचे। हाँ, जहां तक लोगों का भी एक फर्ज बनता है कि वो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जान के वो भी हमें ताउन करे। जहां भी ये भी क्राइम मतलब टिम्बर क्राइम हो तो हमें बिल्कुल हमसे राब्ता करें, उनकी जो भी मतलब आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रख के हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मजमूई ज़री तरक्कियात प्रोग्राम 17 स्पॉन्सर शुदा 7 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम बराए ज़राअत में मसनूई ज़हानत के ज़रिए एहतमाम AI से चलने वाली काश्तकारी के जरिए ज़री सलाहियतों के फ़रोग़ पर तरबियती प्रोग्राम वाइस चांसलर के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद हुआ है। सेशन की सदारत प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनई वाइस चांसलर कॉस्ट कश्मीर ने की है। ट्रेनिंग में मुख्तलिफ पस मंज़र के शुरा और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉस्ट कश्मीर के अमले ने भी शिरकत की है। Farming, which is sponsored by MSME. Crop monitoring and disease detection, smart irrigation system, supply chain of 3 E's, a landmark that is set for itself. One is excellence. More than 5 training programs in a single month.
And these range from trainings about Verified, very renowned expert from IIT, from NIT in the Islamic Session, that is full day session about Python programming, which is a backbone of the AI. Good morning, I am Ashish Azrawat from entomology. I have attended this training towards that empowerment. The College of Agricultural Engineering and Technology and Nitasha Kumar, Associate Dean COAET and Course Director of this program. in students in this training program. Although we may not be able to tell you all about what is the application of AI in agriculture and what are the basics of AI. You will also contribute your knowledge and expertise and make this a two-way learning process. So, it's my honor and privilege to welcome our Honorable Vice Chancellor. They also want to work in AI and they should also get sensitized about what you people are doing in AI. Backgrounds of participants span an impressive range of disciplines including sericulture, computer science, horticulture. भी करनी है तो किस लेवल की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है वो जो पार्टिसिपेंट है अभी वो किस लेवल पे है व्हाट शुड बी द नेक्स्ट लेवल। ये आज का प्रोग्राम HADP प्रोजेक्ट सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर में ये AI एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर के लिए करवाया जा रहा है। इसमें हम AI की जो एप्लीकेशन है डिफरेंट फील्ड में, जैसे प्रेसिजन फार्मिंग में, डिजीज डिटेक्शन में, क्रॉप मॉनिटरिंग एंड मॉनिटरिंग के लिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन के लिए, उसमें AI की एप्लीकेशन कैसे हो सकती है, रिसोर्स यूज को हम कैसे एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसके बारे में तमाम जानकारी दी जाएंगी। इसमें हमने 25 पार्टिसिपेंट्स लिए हैं, जिसमें हमने पहले टारगेट किया है कि हमारे PhD स्कॉलर और फैकल्टी को, ताकि क्योंकि हम अभी ऑटोमेशन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो कैसे हम AI एप्लीकेशन लेकर हमारी रिसोर्स यूज एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से ये 1 वीक की ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी पार्टिसिपेंट्स को देंगे। बहुत सारी ट्रेनिंग हम इसमें करवाएंगे, टाइम टू टाइम हम करवाते हैं। अभी हमारी नेक्स्ट वीक में एक और ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है और जो भी इंटरेस्टेड हैं हम उसको एडवर्टाइज़ भी करते हैं, ताकि वो लोग जो रियली में इंटरेस्टेड हैं इसमें, जो आगे काम करना चाहते हैं, उसमें हमसे कनेक्ट हो सकें। अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अथॉरिटी और तशवीश का मुजाहरा करते हुए तहसीलदार सोपुर शेख तारिक ने आज शहर में अफरा तफरी फैलाने वाले 2 स्टंट्स बाइकर्स को रोका। दोनों अफराद को उनकी बाइक समेत मजीद कार्रवाई के लिए तहसीलदार के दफ्तर में ले जाया गया। मतवाजन तर्ज अमल का मुजाहरा करते हुए तहसीलदार सोपुर ने फौरी तौर पर सिविल सोसाइटी सोपुर के चेयरमैन आशिक हुसैन जकी से मुतालबा किया कि वो स्टंट्स बाइकर्स और उनके वालिदैन की काउंसलिंग में मदद करें। सड़क की हिफाजत और इस तरह की लापरवाही सरगर्मियों के खतरात पर जोर देते हुए तफसीली सेशन के बाद बाइकर्स को उनके वालिदैन के हवाले कर दिया और इस तरह के रवैयों को दोहराने के खिलाफ सख्त वार्निंग भी दी गई। पहले एक बाइक रैश ड्राइविंग में निकल गई और सामने से उसने स्टंटिंग शुरू की, उसके बाद और एक बाइक निकली। अब ये कभी एक दूसरे को वेट कर रहे थे, सामने से लोग दोनों तरफ, रोड आपको खुद भी पता होता है रोड कितना बिजी होता है, तो वो ना जिस तरह के आज लड़के करते हैं वही एक्शन उन्होंने सामने से की। तो पहले हमें लगा ये आगे बहुत चले गए थे, पहले हमें लगा कि ये नहीं पकड़ में नहीं आएंगे, लेकिन मैंने सोचा बीइंग तहसीलदार मैं जिम्मेदार हूँ, चलो कोशिश करते हैं, हो सके अगर मैं यहाँ से हॉर्न बजाऊँ या हमारे पास बजर भी इम्पोर्टेंट टास्क के लिए होती हैं, मैंने सोचा नहीं ये और ज़्यादा रैश करेंगे ड्राइविंग। इवन मैंने ये फैसला लिया, ड्राइवर को मैंने कहा कि जो हमारा ये आगे बोर्ड है हमारा लगा गाड़ी में, ये भी उठाओ ताकि उनको पता न चले कि कोई हमारे पीछे है। हिम्मत मदद खुदा हम आगे बढ़े, अचानक इनकी स्पीड कम हो गई और बिल्कुल जो हमें यहाँ पे कॉलेज गेट है उधर मुझे मौका आया, मैंने गाड़ी सामने लगाई, दोनों बाइक्स को वहीं पे रोक लिया विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम।
मैंने दोनों बाइक्स वहाँ से उठाए, दोनों बंदों को अपने गाड़ी में, छोटे लड़के ही थे, अपनी गाड़ी में डाला ताकि सीन ना हो, वो जो कोई बड़ा सीन ना हो जाए। लेकिन लोग देख रहे थे, वहाँ पे भी लोगों ने अप्रिशिएट किया। ट्रैफिक जाम हो सकता था, मैंने सोचा पहले, इवन मैंने ये भी नहीं देखा कि ये कहाँ के हैं। ऑफिस पास बाई ही था, इधर इनको लाया। अब एक बांडीपुरा का था, दूसरा सोपोर का ही है। अभी हमने इनके रिलेटिव्स को बुलाया है। एक चीज़ में इनको ये इन्होंने मज़ाहमत नहीं की, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, तो थोड़ा मैं भी लीनियंट हूँ। पुलिस के हवाले उनको मैंने नहीं किया, लेकिन मेरे जहन में एक ख्याल आया कि लोगों के सामने ये एक्ट हुआ, अभी अगर मैं इनको छोड़ूंगा, क्योंकि वी बिलीव इन हेट द सिन नॉट द सिनर, एक मैसेज जाए। सरदार सोपोर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है बर वक्त जो ये स्टंट कर रहे थे ये दो लड़के, तो उनको बर वक्त जो है काबू करके जो है अपने ऑफिस में लिया। तो इसके लिए मैं तहसीलदार सोपोर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और आपकी वसादत से जो भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए जो सबसे बड़ा सरमाया है वो हमारे बच्चे होते हैं। खुदारा अपने बच्चों पे जो है निगाह रखिए। अपने आपके जो बच्चे हैं, खासकर जो आपके अंडर एज बच्चे हैं, उनको गाड़ियां ना दें, उनको बाइक्स ना दें, क्योंकि आपका बच्चा जो है जब उसकी लाश आपके घर आती है तब जाके जो है आपको पता चलता है, लेकिन उस वक्त बहुत देर हुई होती है। तो मैं तमाम पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं, हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट करता हूं। आपने रिसेंटली देखा कि किस तरह से श्रीनगर में जो है किलिंग्स हुई इन ये जो स्टंट्स कर रहे थे बच्चे। तो मेरी यही गुजारिश होगी कि नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।